Assalamualaikum everyone. So now let's talk about the non-elastic impression materials. We have four materials in this class. So this video we will talk about the impression plaster and impression vexes, and in later videos we will talk about the impression compound and zinc oxide retinol. Okay. So what is impression plaster and its composition? It is very important because it gets frequently asked in your bio questions and it should be in your fingertips. So impression plaster contains the beta calcium sulfate hemihydrate, potassium sulfate, borax, and pigment. These are the four ingredients. And the function of these ingredients is basically beta calcium sulfate hemihydrate is a powder, okay, which is also used in the gypsum. So gypsum class 1 जो थी basically that was the impression plaster. It will mix with the water. It will form the impression calcium sulfate dihydrate. It is hemihydrate itself, but when it will mix with the water, it will form the dihydrate. Okay. Second thing which we have added is the potassium sulfate. It acts as an accelerator. It will accelerate the setting time. And it accelerate the setting time like आपकी setting जल्दी हो जाएगी तो आपके लिए ज़्यादा easy है ये, ठीक है. Borax is basically retarded. It will inhibit the setting. तो setting time बहुत ज़्यादा long हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है. तो borax क्या किया हमने, and the pigment, the function of the pigment is to distinguish between the impression model and the impression plaster, ठीक है. तो उसके बीच में डिफरेंस करने के लिए हमने यहाँ पे alizarin dye ऐड किया है पिगमेंट के तौर पे. अच्छा, तो प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी, बेसिकली आफ्टर टेकिंग इम्प्रेशन यूजिंग इम्प्रेशन बाद एक्सपेंड कर जाता है. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, तीन एंटी एक्सपेंशन एजेंट यूज किए हैं विच आर योर इम्प्रेशन पोटेशियम सल्फेट, बोरेक्स एंड पिगमेंट्स. These three are your anti-expansion agents we have added in impression plaster. Now, what are the properties of impression plaster? It is mucostatic material. Mucostatic means it is fluid in nature. It will record your fine details record करेगा ये, ठीक है. It is high, water powder ratio is high. Why it has a higher water powder ratio is basically, for example, we have uses the 2 cups of water and the 1 cup of the powder, ठीक है. तो मेरे पास बेसिकली क्या होगा, हाई हो गया ये. तो देन नॉर्मली मेरे पास रेशियो जो आता है दैट इज दी वैल्यू जो आती है दैट इज 0.6 वैल्यू हाई वाटर पाउडर रेशियो यूज करते हैं हम, ठीक है. विस्कोसिटी इसकी नॉर्मली 60 है, तो इट इज हैज लो विस्कोसिटी, मीडियम में लो विस्कोसिटी हैज इसकी है, ठीक है. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी मिक्स प्लास्टर इज टू फ्लूइड. व्हाई इट इज टू फ्लूइड बिकॉज इट इज हाई वाटर पाउडर रेशियो, ठीक है. वाटर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्लूइड नेचर होगा इसका, ठीक है. तो नॉर्मल जो स्टॉक होती है उसमें ये यूज नहीं होता. तो हम लोग इसके लिए स्पेशल ट्रे बनाते हैं एक्रेलिक रेजिन की, और उस रेजिन की जो स्पेशल ट्रे बनती है उसके अंदर हम लोग स्पेसर ऐड करते हैं 1 to 1.5 स्पेसर 1.5 का. For example, you can see this is the model. We have a wax on it, and this इसमें जो spacer जो container आ रहा है that is the 1 to 1 millimeter का spacer मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है. तो इस तरह की मेरे पास एक ट्रे बन के रहेगी that is a स्पेशल ट्रे, कस्टम ट्रे है और एक एक्रेलिक की ट्रे फॉर द इम्प्रेशन प्लास्टर के लिए, ठीक है. सेकंड ट्रे यूज करते हैं फॉर द शेलिक की ट्रे होती है बेसिकली, शेलिक इज इम्प्रेशन कंपाउंड. तो इसकी ट्रे भी यूज करते हैं फॉर द इम्प्रेशन प्लास्टर के लिए हमें रिकॉर्ड करना हो तो, ठीक है. Lastly, if you have to disinfect it, we will soak it in the hypochlorite solution for 10 minutes in order to disinfect it, ताकि फ्री कॉम बैक्टीरिया या लेबोरेटरी में सेंड करने से पहले मैं डिsinfect जरूर करते हैं इम्प्रेशन को अपने. एडवांटेजेस क्या क्या आते हैं, इट इज चीप, इट इज कैन इजीली लाइक अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा चीप है, इजी टू हैंडल है, बहुत इजीली इजी टू यूज एंड इजी टू हैंडल है ये. पॉइंट रिकॉर्ड कर देता है, और इसके अलावा इसकी रेमिनिसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा एडिक्वेट है, लाइक अच्छी रेमिनिसिबिलिटी, तो मटेरियल इज गुड टू गो, लाइक अच्छा मटेरियल है बस, ठीक है. बट डिसएडवांटेज इसका ये आता है कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है. वाई बिकॉज इट कैन इजीली फ्रैक्चर हो जाता है बहुत इजीली, तो इसलिए हम अंडरकट्स में इसको आइडियल नहीं है, बट वी कैन यूज इट. वी हैव स्टडीड इट बिफोर कि impression plaster is used in the undercuts, but it is not ideal to use it because it will get fractured easily. Patient complains of dry mouth. Why? Because it has the hydrophilic nature. ठीक है, it will absorb all the saliva and all the water. So powder form में वैसे ही है कि तो powder attract the water. ठीक है, तो वो क्या करेगा, सारा जब saliva सोख कर लेगा तो फिर आपके पास जो पेशेंट कमी करेगा ड्राई माउथ. इसलिए मेरे पास पेशेंट कमी करें ड्राई माउथ की. इसके अलावा इसकी स्पेशल ट्रे रिक्वायर होती है क्योंकि मुझे नॉर्मल चॉकलेट में नहीं बना कर सकती, मैं यूज नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि ये बहुत फ्लूइड नेचर है, तो मुझे इसके लिए स्पेशल ट्रे बनानी पड़ेगी. It is not ideal for undercuts and it requires a separating medium. ठीक है, तो why it requires a separating medium is the reason is because impression plaster is basically your impression area मैंने, but when I pour it gypsum into it, तो gypsum भी प्लास्टर ही है, ऑलमोस्ट लाइक प्लास्टर है, और ये impression प्लास्टर है, दोनों को सेपरेटिंग मीडियम चाहिए होगा ताकि ये आपस में कास्ट बनने के बाद सेपरेट हो सके, ठीक है. तो आपने क्या लगाना है, सेपरेटिंग मीडियम रिक्वायरमेंट है मेरी. यूजेस क्या क्या आ रहे हैं इसके, तो बहुत ही ज्यादा यूजेस किस तरह से कि अगर मुझे अंडरकट रिकॉर्ड नहीं करने का ऐसा एरिया है जहाँ पे अंडरकट प्रेजेंट नहीं है एंड मुझे उसको रिकॉर्ड करना है, तो मैं वहाँ पे यूज कर लूंगी. दूसरा इसका यूज आता है बस फ्लैबी टिश्यू रिकॉर्ड करने के लिए. व्हाट आर दी फ्लैबी? इट इज बेसिकली मोबाइल सॉफ्ट टिश्यू ओवरलाइंग द एलुलर बोन. फॉर एग्जाम्पल इडेंटलेस पेशेंट है, उसकी क्या होगा, एलुलर बोन डिसॉल्व कर रही है, डिसॉल्व कर रही है एलुलर बोन, तो वहां पर फिब्रस टिश्यू बन जाएगा, उसको हम कहते हैं फ्लैबी टिश्यू.
ये फ्लैबेरिज नॉर्मली कम्बिनेशन में रिमूव कर देते हैं हम इसको, बट अगर रिमूव नहीं किए किसी वजह से तो वहां पर जो इम्प्रेशन दूंगी दैट विल बी फॉर्म दी इम्प्रेशन, प्लास्टर इम्प्रेशन देंगे हम लोग। तो यू कैन सी फॉर्म, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ द फ्लैबेरिज। दिस इज द पिक्चर। You can see this is a flabberige. It has a soft fibrous tissue basically form हो गया है due to the resorption of the bone, ठीक है। तो वहाँ पे fibrous tissue formation is known as the flabberige। इसके इंप्रेशन लेने में मसला होगा क्योंकि obviously it is a soft tissue, it will displace easily। तो मैंने उसको डिस्प्लेस करवाना नहीं है, मैंने इंप्रेशन लेना होगा तो उसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं इसके लिए, दैट इज नोन एज वॉश इंप्रेशन टेक्निक या टू स्टेज इंप्रेशन टेक्निक, ठीक है। तो इन दिस टेक्निक वी यूजेस द वी टेक इंप्रेशन टू टाइम्स। फॉर एग्जांपल पहले मैंने इंप्रेशन लिया था फॉर इंप्रेशन कंपाउंड से which is the mucocompressive material, they fail to record the अंडा का रिकॉर्ड नहीं करते इसने, ठीक है। बट देन इंप्रेशन नहीं है इंप्रेशन प्लास्टर से, एंड since it is mucostatic it will record the fine needle record it to flow into that area में फ्लो कर जाएगा, एंड वहां पे जाके इसकी ये सारे अंडे और इन सब एरिया को फाइन नीडल रिकॉर्ड करेगा ये, ठीक है। तो इसको करते कैसे, टेक्निक क्या आती है फ्लैबेरिज रिकॉर्ड करने की, इज दी बेसिकली इडेंटलेस रिज है, बेसिकली इडेंटलेस आर्च है, उसका हमने पहले प्राइमरी इंप्रेशन लेना है, ठीक है। प्राइमरी इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के बाद इसके हमने कास्ट ऑब्टेन कर ली, लाइक कास्ट मैंने बना ली है। जब कास्ट फॉर्म कर लिए तो उस कास्ट के ऊपर मैंने अपने फ्लैबी जो मोबाइल टिश्यू है वहां पे उसका मार्किंग करनी है उसकी, ठीक है। मार्क करने के बाद कस्टम ट्रे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये देखो पिक्चर जो नजर आ रही है, दिस इज कस्टम ट्रे ऑफ दैट एरिया की मैंने कस्टम ट्रे बना ली, ठीक है। सपोज हेयर इज माय फ्लैबेरिज एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी फ्लैबेरिज को। मार्क करने के बाद एक विंडो क्रिएट होगी। विंडो इज बेसिकली द फ्री एरिया, लाइक जहाँ पे मैंने एम्प्टी एरिया जहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस पिक्चर द एरिया हैज रिमूव, ठीक है। दिस इज द एम्प्टी एरिया, बेसिकली यहाँ से एक मैंने फ्लैबेरिज को रिमूव किया था बाय यूजिंग दी बर्ड्स। तो इसको मैंने जो एम्प्टी एरिया किया है ना बेसिकली, इसको मैं कह रही हूँ विंडो का नाम, क्योंकि एक विंडो टाइप बन गई है ये, ठीक है। जिसको नाम दे रहे हैं विंडो का, ठीक है। विंडो बन गई है। विंडो बनने के बाद क्या करना है, आपने बाउंड्री को ग्रीन स्टिक्स कंपाउंड यूज करके उसकी बाउंड्री फॉर्म कर लेनी है, ठीक है। एंड देन सेकेंडरी इंप्रेशन रिकॉर्ड करना है बाय यूजिंग द जिंगल पेस्ट। दोबारा इसे बता देती हूँ, पहले क्या कहता है, प्राइमरी इंप्रेशन रिकॉर्ड किया था इडेंटलेस रिज का, कास्ट ऑब्टेन कर ली थी। कास्ट के ऊपर बेसिकली ट्रैबिंग मोबाइल एरिया को मार्क कर लिया एंड कस्टम ट्रैब बना ली थी। कस्टम ट्रैब के बाद जब वहां मार्क किया था उसको रिमूव कर दिया, लाइक विंडो बना दी वहां पे। एंड देन उसकी यहाँ पर देखो ग्रीन स्टिक से मैंने बेसिकली क्या करा है, विंडो सॉरी बाउंड्री फॉर्म कर ली है। एंड देन सेकेंडरी इंप्रेशन लिया पेशेंट का बाय यूजिंग द जिंगल, ठीक है। इसको दोबारा से पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करेंगे हम लोग। एंड देन यहाँ पर जो मेरा विंडो एरिया है ना, इसमें हम यहाँ पे अपना इंप्रेशन प्लास्टर को पोर करेंगे। तो कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी। बस यहाँ पे मैंने इस विंडो एरिया में अपने क्या किया है, इंप्रेशन प्लास्टर को पोर किया था इस विंडो के जरिए, ठीक है। तो विंडो में मैंने इंप्रेशन प्लास्टर को पोर कर दिया, ठीक है। सेटिंग करूंगी एंड देन उसको रिमूव कर देंगे पेशेंट के वहां से, एंड देन बॉडी में भेज देंगे फॉर मेकिंग फर्दर प्रोसीजर इसका होगा, ठीक है। It is a technique for the wash impression in order to record the flabberous. Since it is the displays easily, it will get displayed easily. तो हमने यहाँ पे flabberous को record करना है difficult, and we use impression plaster. Since impression plaster में कोई static material है, it पे flow कर जाएगा, record करेगा fine details को, ठीक है। तो बहुत easy से मैंने आपको इसके method 5-6 methods हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं impression waxes. Impression waxes की composition is 1:3 का ratio में हम यूज करते हैं paraffin wax and bee wax, ठीक है। इन दोनों का combination यूज बनाता है impression wax. Impression wax is mucocompressive. Plaster was mucostatic, but impression wax is mucocompressive in nature. It is thermoplastic material. Why I'm calling it thermoplastic? Because it is flow or when heat is applied. ठीक है, like solid है room temperature के ऊपर, whereas mouth temperature पे flow कर रही है ये। इसलिए thermoplastic कहते हैं इसको, क्योंकि मेरे पास नॉर्मली माउथ टेम्परेचर ज्यादा 37 डिग्री है, whereas रूम टेम्परेचर 3 डिग्री है, ठीक है। तो माउथ टेम्परेचर पे जाके सेट हो रही है ये, एक फ्लूइड नेचर में आ जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी माउथ टेम्परेचर पे वैक्स, ठीक है। So that is why we call it the thermoplastic material. यूजिंग द impression practice it is used to correct the defective impression, ठीक है। किसी भी वजह से मेरा impression डिफेक्ट हो चुका है, टूट चुका है या कोई मसला आ चुकी है, तो उसको करेक्शन के लिए impression वैक्स से करेक्ट करते हैं उसको हम लोग। दूसरा impression वैक्स यूज होती है बेसिक सैडल impression देने के लिए। सैडल इज अ फ्री एंड एरिया, लाइक जहाँ पे आपके पास टी सपोर्ट नहीं थी तो वहां पर सपोर्ट लेने के लिए हम impression वैक्सेस से impression लेते हैं। सैडल की हमें पास 4 क्लासेस आती हैं सैडल एरिया की, दैट इज योर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। सो अब हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। क्लास 1 इज फ्री एंड सैडल एंड क्लास 2 इज फ्री एंड सैडल। Class 1 is bilateral free and saddle, like posterior bilaterally teeth absent the edentless area, that is known as the class 1. Class 2 has a unilateral free and edentless area, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे saddle is basically like एरिया जो empty एरिया हम कह रहे हैं उसको bilateral है, unilateral है बेसिकली क्लास 2, तो हम कह रहे हैं saddle एरिया, ठीक है। क्लास 3 में हमने नाम दिया था उसको यूनिलेटरल टूथ बाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड से, लाइक यहाँ से पोस्टीरियर सपोर्ट है, टीथ मौजूद है, बट इस सेंटर एरिया में इडेंटलेस एरिया है ये, ठीक है। यूनिलेटरल है और सेंटर से नहीं है, टीथ दोनों ने क्लास 3।
क्लास 4 वी कॉल इट सिंगल, लाइक एक पूरा इंटीरियर आर्च की टीथ एब्सेंट है, एडेंटलेस एरिया है, तो ठीक है सिंगल बट बायलैटरल। व्हाई एम कॉलिंग इट बायलैटरल, बिकॉज जब मिड लाइन से एरिया लाइन ड्रॉ करूंगी तो बेसिक टू टीथ यहाँ से नहीं है, टू टीथ यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो बायलैटरल हो गए वो, अगर मिड लाइन से ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पर, ये ठीक है। तो बायलैटरल बट सिंगल, एंटीरियर टीथ सारे नहीं है, इंसाइजर्स नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो उसका नाम देते हैं बेसिकली सिंगल व बायलैटरल डेंटल सीरीज क्लास 4, ठीक है। इंप्रेशन वैक्सेस कहाँ पे यूज करनी है? क्लास 1 में फ्री एंड सैडल के अंदर यूज करनी थी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था फ्री एंड सैडल, यू कैन सी हियर फ्री एंड सैडल में हम यूज करनी है हमें, तो बेसिकली क्लास 1 एंड क्लास 2 के अंदर हम यूज करेंगे इंप्रेशन वैक्सेस को, ठीक है। तो इसके यूज रखने हैं, दो यूजेस है, डिफेक्टिव इंप्रेशन के लिए एंड सैडल एरिया के लिए। वेयर इज इंप्रेशन क्लास 2 इज यूज फैब्रिक रिकॉर्ड करनी है, या फिर मुझे अपना अंडरकट्स एरिया जहाँ पे नहीं है वहां पर रिकॉर्डिंग करनी है, इंप्रेशन लेना है, ठीक है। और इसके अलावा ये यूज हो रहा था फ्लैबिडेज और वॉश इंप्रेशन रखने के अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी, कॉम्पोजिशन स्पेशली यूज एडवांटेज डिसएडवांटेज एवरीथिंग शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. So let's end this and we will talk about the Russian compound later on in another video. Thank you so much.